Namaskaram everyone. This is the lecture series on wastewater treatment. It's a journey to the treatment and return to the environment. We have completed two series of lectures in which we saw construction, operation and maintenance of trickling filters in detail. Today we are going to see advantages and disadvantages of trickling filters. This was the sectional view of trickling filters. We saw its working. This is the photographic view of circular trickling filter. Then we saw types of trickling filter. Today we will be learning regarding comparison of single slow rate trickling filter and high rate trickling filter. Okay, so here we saw what is recirculation and single stage trickling filter and what are the benefits of high rate trickling filters. Now comparison between single rate trickling filter and high rate trickling filter, single stage. Okay, for this comparison, the characteristics which are depth of the media between single stage trickling filter is 1.8 to 2.4 meter and high rate trickling filter is 1.2 to 1.8 meter. Hydraulic loading rate should be 1.1 to 4 and high rate trickling filter should be 30 to 40. Organic loading as 5 days BOD should be 80 to 30, 320 and high rate it is 500 to 1000. Recirculation system. Usually in single stage system trickling filter it is not needed, usually not provided, but can be provided in if hydraulic load does not exceed limit. Always provided in the range of 1:1 or 4:1. Okay, volume of the bed is 5 times. Here the volume is less in high rate trickling filter. In single stage trickling filter the interval dosing is not more than 5 minutes and in high rate trickling filter it is not more than 5 seconds. It is intermittent and this is continuous working. Cost operation is more, in this it is less. Land is required is more and in this high rate trickling filter it is less. Final effluent quality BOD less than or equal to 220 mg per liter and highly nitrified, while as in high rate trickling filter BOD is greater than or equal to 30 mg per liter and not fully nitrified. In secondary sludge, highly oxidized black color having fine particles, and in high rate trickling filter it is not fully oxidized brownish black color containing fine particles. Now, the main topic of today's lecture is the problems which we face while operating trickling filters and what are the measures which we can take for avoiding those problems. Now, ponding. Ponding is normally the result of excessive organic loading without a corresponding higher circulation rate. ओके, सो पॉन्डिंग मतलब क्या, पानी इकट्ठा होना एक जगह पे. सो जब ट्रिकलिंग फिल्टर में एक जगह पे ट्रिकलिंग फिल्टर में पानी इकट्ठा होता है तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो पॉन्डिंग पॉन्डिंग मतलब क्या, इट इज नॉर्मली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ऑर्गेनिक लोड. जब ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा होता है तब पॉन्डिंग होती है. यूज ऑफ मीडिया विच इज टू स्मॉल. जब मीडिया आपका एब्जॉर्प्शन मीडिया अगर बहुत स्मॉल है तो वो ज्यादा पानी ज्यादा सीवेज एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो पानी वहीं इकट्ठा रहेगा, तो उस कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी में. क्लॉगिंग ऑफ अंडर ड्रेन्स. जब आप
ट्रिकलिंग फिल्टर के यूज करने से पहले, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ट्रिकलिंग फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले आपको इन्फ्लुएंट को प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या स्क्रीन को किसी भी एक यूनिट के थ्रू पास करने के बाद ही ट्रिकलिंग फिल्टर में इन्फ्लुएंट को पास करना है। अगर आप ट्रिकलिंग फिल्टर में सीधा इन्फ्लुएंट पास करोगे तो ड्रेन्स क्लॉग हो जाएगी, तो द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉगिंग ऑफ अंडर ड्रेन्स विल बी देयर। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मीडिया साइज और ब्रेकिंग अप ऑफ द मीडिया का जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था तो हमने स्टडी किया था कि मीडिया, जो फिल्टर मीडिया है वो कैसा होना चाहिए। फिल्टर मीडिया शुड बी सच दैट इट शुड नॉट बी ब्रेकेबल और इट शुड हैव अ सफिशिएंट स्ट्रेंथ। ओके, सो अगर आपका फिल्टर मीडिया बराबर नहीं है, it is not up to the mark, then if it is not in uniform size, it will be breaking up. Okay, it will break up, so that will be also one of the problem. ट्रैश और डेब्रिज इन द फिल्टर वॉइड्स, जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं फिल्टर मीडिया के बीच में, अगर आपका इन्फ्लुएंट अगर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या स्क्रीनिंग से अगर वो पास नहीं होगा तो जो भी ट्रैश या डेब्रिज होंगे जो स्क्रीनिंग में निकल जाने चाहिए। ओके, सो इफ यू विल नॉट be passing the your influent from the screening before passing it through the trickling filter, the debris which will be there in the influent will be getting stuck in the filter voids. Now in this figure you can see ponding. Water is accumulated and it causes odors and decreases the filter efficiency. Now ponding, how can we eliminate ponding? Ponding can be eliminated by flushing out influent. Okay, or by flushing out the influent or stirring the influent, stirring or agitating ponding area with stick. Okay, if you continuously stir the ponding area with the stick, the circulation will enhance the flow of the water. आपको किसी भी चीज को आप अगर स्टिक से उसको फ्लो करोगे सर्कुलर मूवमेंट में ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो एयर सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और एयर सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण वो पॉन्डिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डोसिंग द फिल्टर विथ क्लोरीन, अगर क्लोरीन से क्लोरीन से अगर उसमें ऐड किया जाता है पॉन्डिंग के वक्त तो पॉन्डिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फ्लडिंग फिल्टर एंड कीपिंग द मीडिया सबमर्ज्ड फॉर approximately 24 hours will sometimes cause the growth or to slough. Growth becomes anaerobic and tend to release from the media. अगर पॉन्डिंग फ्लडिंग होगा तो फ्लडिंग मतलब क्या कि फिल्टर में ट्रिकलिंग फिल्टर को पानी से भर देना, अगर और अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, तो इस कारण जो भी पानी इकट्ठा हुआ होगा वो इजीली वॉश आउट होगा। और क्लीन पानी आप भर के रखोगे तो जो भी लार्वा जो डिपॉजिटेड हो पानी से बना होगा उसमें वो वॉश आउट हो जाएगा। In this diagram you can see spraying the surface with high pressure water hose, मतलब हाई प्रेशर पानी के हाई प्रेशर से पाइप से वो उसको हिला रहे हैं अच्छी तरह से या एजिटेशन कर रहे हैं। odors, since the trickling filter is an aerobic process, no serious odors should exist. ओके, मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर एरोबिक प्रोसेस है, सर्कुलेशन ऑफ एयर हमेशा होती रहती है, इसलिए उसमें ओडर्स कम निर्माण होते हैं। तो इफ फाउल ओडर्स आर प्रेजेंट, एनॉर्बिक कंडीशंस आर मोस्ट लाइकली टू कॉज। एनॉर्बिक कंडीशंस यूजुअली प्रिडोमिनेट नेक्स्ट टू द मीडिया सरफेस। If the surface of the slime growth is aerobic, odor should be minimal. अगर स्लाइम ग्रोथ मिनिमम रहेगी तो ओडर भी मिनिमम रहेगा। इफ odors are present, corrective action should be taken immediately or the condition should get worse. अगर odors present है पानी में तो
जल्द से जल्द आपको उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर काम नहीं करेगा। Some corrective measures are try to maintain aerobic conditions in collection system and in primary treatment unit. Okay, check the ventilation of the filter for clogging and stopping. वेंटिलेशन जो हमने देखा था, बॉटम में वेंटिलेशन पाइप्स दी जाती है, तो अगर उनमें क्लॉगिंग होगी, स्टॉपेज होगा, तो वो चेक करते रहना है। अगर उसमें क्लॉगिंग होगी तो ओडर्स फॉर्म होंगे। ओके, check the under drain system for clogging and stoppage. Same I told you in earlier point, that was you have to check the ventilation continuously. Similarly, you have to check the under drain system also properly. If there is some clogging or not, that you have to check it. Now keep the wastewater in the filter. Do not allow it to splash or on exposed surface, weeds or grass. As your influent is a wastewater. Okay, it contains microorganisms, germs, bacteria. So your influent should not splash on the exposed surface or weeds or grass. Okay, add odor masking agents. Now pre-chlorination at primary tank influent or at dosing tank will also decrease the odor. Now increase the recirculation rate. This usually provides added oxygen to the filter and may increase sloughing. रिसर्कुलेशन मतलब क्या, हमने आगे के लेक्चर्स में पढ़ा था। रिसर्कुलेशन मतलब इन्फ्लुएंट ट्रिकलिंग फिल्टर के इन्फ्लुएंट ट्रिकलिंग फिल्टर जो एफ्लुएंट आता है, ट्रिकलिंग फिल्टर से पानी पास होने के बाद उसमें से एक पार्ट आप ट्रिकलिंग फिल्टर का इन्फ्लुएंट में, जहां से इन्फ्लुएंट देना है, जैसे प्राइमरी टैंक में आप इन्फ्लुएंट स्टार्ट करोगे, उसमें एक पार्ट डालना है आपको, तो ये आपका सीवेज का रिसर्कुलेशन होगा। तो इंक्रीजिंग द रिसर्कुलेशन रेट, आप इसको 2 बार 3 बार 2 बार 2 फिल्टर लगा सकते हो या 3 फिल्टर लगा सकते हो। तो जब भी आपका एफ्लुएंट बाहर आएगा 1 ट्रिकलिंग फिल्टर से, तो वो फिर से इन्फ्लुएंट बन के प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से फिर से आपके ट्रिकलिंग फिल्टर में आएगा। इस तरह से सभी 1 2 3 सब तरफ से जब ट्रिकलिंग फिल्टर पास होता है, रिसर्कुलेशन इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन ऐड होगा फिल्टर में, और ऑक्सीजन ऐड होने के कारण ओडर्स कम आएंगे। Now filter flies. Filter flies are nuisance to the plant, person and nearby neighbors. These tiny giant flies are called cycoda. The filter flies जो trickling filter में होते हैं उन्हें cycoda कहा जाता है। Okay, they are occasionally found in great numbers, preferring an alternate wet and dry environment for the development. So अभी इनके बढ़ने के लिए हमें alternate dry और wet environment चाहिए होता है। तो फिल्टर फ्लाइज काफी इजी से डेवलप होती है ट्रिकलिंग फिल्टर में। दे ले देयर एग्स इन पॉन्डेड वाटर। जब पानी पॉन्डिंग हो जाता है, एक जगह पे जमा होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो साइकोडा फ्लाइज वहां पे पनपने लगती है। द फ्लाइज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड इन लो और स्टैंडर्ड रेट फिल्टर्स विद एन इंटरमीडिएट डोसिंग सिस्टम। ये पिक्चर में आपको दिस डायग्राम शोज टिपिकल फिल्टर फ्लाई, ओके, साइकोडा। और अभी ये क्या करेक्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं फिल्टर फ्लाइज ना हो ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। फ्लडिंग द फिल्टर इंटरमिटेंटली टू प्रिवेंट कंप्लीशन ऑफ द फ्लाई लाइफ साइकिल। आप अगर बार बार फ्लडिंग करते रहोगे ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो जो लार्वा से फ्लाई बनने की जो साइकिल होती है वो टूटती जाएगी, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो लार्वा से फ्लाई इजीली डेवलप नहीं होगी। सो ये एक करेक्टिव मेजर होगा ट्रिकलिंग फिल्टर में फ्लाइज अवॉइड करने का। सो फ्लडिंग ऑफ द फिल्टर इंटरमिटेंटली, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको फ्लडिंग करना है ट्रिकलिंग फिल्टर में। दिस लाइफ साइकिल कैन बी एज शॉर्ट एज 7 days। 7 दिन में लार्वा से फ्लाई बन सकते हैं अगर वार्म वेदर हो तो। और फिल्टर शुड बी फ्लडेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। अब फ्लडिंग कब तक रखना है, तो उसका टाइम है 24 आवर्स।
increasing recirculation. A continuous waste flow to the filter will tend to wash fly larva from the filter. अभी जब हमने पॉन्डिंग डिस्कस किया था उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि पॉन्डिंग के कारण फ्लाइज डेवलप होती है ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो ये उसका प्रॉब्लम है। तो उस वक्त ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग पॉन्डिंग को सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। करेक्टिव मेजर क्या है पॉन्डिंग के फ्लाइज के लिए? ओके, तो जो डेवलप होती है पॉन्डिंग के कारण, तो करेक्टिव मेजर्स ये है कि हम लोग रिसर्कुलेशन बढ़ा देंगे, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द फिल्टर। तो उससे क्या होगा, लार्वा जो भी डेवलप हो चुका है वो फ्लाई वॉश आउट हो जाएगा एफ्लुएंट के साथ, सो फ्लाइज नहीं बन पाएगी। Flushing or washing the side walls of the filter by opening the flap valve at the end of the distributor arm. Distributor arm के एंड में एक फ्लैप वॉल होता है और कंटिन्यूअसली मैनुअली भी आप क्लीन कर सकते हो साइड वॉल्स ऑफ द फिल्टर, जिस कारण उसके अंदर उसके वॉल के ऊपर डिपोजिशन ना हो अल्गी या कोई और बैक्टीरिया का या लार्वा का। Keeping the plant grounds neat, clean and free from excessive weeds, plants and grass which are excellent breeding ground for flies. तो ये तो हाउसकीपिंग का हो गया कि हर प्लांट में आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, उस कारण सिर्फ वीड पॉन्डिंग का या ओडर का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, उस कारण टोटल एफिशिएंसी आपकी प्लांट की बढ़ जाएगी। ओके, the addition of chlorine which is toxic to the flies and the larva को मिटाने के लिए आप एडिशन ऑफ क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, सो वो लार्वा को इजीली पनपने नहीं देता। और ये एक्चुअल व्यू है ट्रिकलिंग फिल्टर में, आप देख सकते हैं ये सर्कुलर ट्रिकलिंग फिल्टर है, पैरेलली आप साइड बाय साइड इसे लगाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म से नोजल से पानी ट्रिकल हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर सीरीज ट्रिकलिंग फिल्टर पे एंड होता है।